TORs ہیں اس پہ ہم نے PDM کی جو لوکل قیادت ہے انہیں بھی مدعو کیا اور انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے. 28 نکاتی پوائنٹس ہیں ہمارے, جس میں سیکورٹی ارینجمنٹس ہیں, جس میں ہم PDM کی جو قیادت تشریف لائیں گے ان کو بلٹ پروف وہیکلز ہم فراہم کریں گے, فول پروف ارینجمنٹس کریں گے ہم, اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی کے فرائض ہے احسن طریقے سے بہتر انداز میں سر انجام دینے کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کمیٹڈ ہے. اور 3000 کے قریب صرف ہمارے پولیس لیویز BC اور لیویز کے ہم نے فورسز ڈپلوائے کرنے ہیں کوئٹہ میں. لیکن اب کل جو نیکٹا کا سیکورٹی تھریٹ الرٹ آیا ہے اور بلوچستان کے روب ڈویژن میں قمردین کارز میں پھر کل جو ہیوی آرم ایمونیشن وہاں سے جو پکڑا گیا ہے, اس تمام صورتحال کے بعد بلوچستان گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو ہماری پریشانی ہے, اس میں یقیناً اضافہ ہوا ہے اور ہمارے شولڈر پہ بوجھ بڑھ گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ PDM قیادت کی رسپانسبلٹی بھی اب بڑھ گئی ہے. اور PDM قیادت جب یہ گجرانوالہ میں گئے اس وقت کوئی سیکورٹی تھریٹ الرٹ نہیں تھی, تو کسی نے اس بابت ذکر بھی نہیں کیا, سیکورٹی کی حوالے سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور ان کو جلسہ کرنے دیا گیا. اسی طرح کراچی میں ایسی صورتحال نہیں تھی تو اس موضوع پہ بات نہیں کیا گیا. بٹ انفارچونیٹلی اب بلوچستان میں اور KPK میں جو نیکٹا کا سیکورٹی تھریٹ الرٹ آیا ہے اس کو بلوچستان گورنمنٹ انتہائی سنجیدگی کی نظر سے دیکھ رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں پاسٹ میں بھی, خصوصاً پاسٹ کے 2 اشروں میں اس طرح کے سینکڑوں واقعات رونما ہوتے رہے ہیں. یہاں پہ جلسوں میں جلوسوں میں پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, سٹنگ چیف منسٹرز, ان کے اوپر ٹیررسٹ اٹیکس بھی کیے گئے, بم بلاسٹ بھی کیے گئے. جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ان کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی جاتی رہی, نشانہ بنایا بھی گیا, ان پہ اٹیکس بھی ہوئے. اور پورے ملک میں KPK میں اس طرح کے واقعات ہوئے, کراچی میں ہوئے, اسلام آباد میں ہوئے, لاہور میں ہوئے. تو یہ جو صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, یہ وقتاً فوقتاً درپیش چیلنجز سے نبرت آزما ہوتا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو PDM کی قیادت ہے وہ انتہائی رسپانسبل قیادت ہے. اس میں بڑے رسپانسبل عہدیدار ہیں, پرائم منسٹر پاسٹ کے وہ بھی اس PDM قیادت کا حصہ ہیں. اس میں چیف منسٹر صاحبان بھی رہے ہیں, سردار اختر مینگل صاحب چیف منسٹر بلوچستان رہے ہیں, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب چیف منسٹر بلوچستان رہے ہیں, اچکزئی صاحب کی جماعت ان کی آدھی فیملی اسی بلوچستان میں گورنر, مختلف منسٹرز کے عہدے پہ براجمان رہے ہیں. وہ بینیفیشری اسٹیک ہولڈر شیئرڈ ہولڈر اس سسٹم میں رہے ہیں اور آج بھی ہیں. پارلیمان کے اراکین ہیں PDM کی اکثر جماعتیں, باٹم کے چند ایک جماعتوں کے علاوہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سیکورٹی تھریٹ الرٹ کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اگر میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر بلوچستان کے ایک شہری کے ناطے جو سخت دور ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے, ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میں نے دیکھا ہے, جو ہو کا عالم رہا ہے, جو خوف کا عالم رہا ہے کہ 3-4 سال قبل بلوچستان میں کوئی شخص شام ہونے کے بعد گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا, بازاریں ویران پڑ جاتی تھیں, دھماکوں, خودکش دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگز کا جو یہاں پر ایک ماحول رہا ہے, جو لائشیں بلوچستان کے عوام نے اٹھائیں, جو ہم نے سفر کیا ہے, جو تکالیف اٹھائے ہیں, KPK کے عوام نے بھی بہت سفر کیا. اس کے بعد پنجاب کے کچھ اضلاع میں واقعات پیش آئے, کراچی میں پیش آیا. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی جبکہ PDM کی قیادت 3 دفعہ اپنا جلسہ ملتوی کر چکی ہے, اور انہوں نے ملتوی اپنا جلسہ صرف اس خوف سے کیا, یا میں محتاط لفظ استعمال کروں کہ اس احتیاط کے ناطے انہوں نے 2 دفعہ جلسہ ملتوی کیا کہ ان کی تیاری نہیں تھی, ان کے پاس لوگ نہیں تھے, اور پھر
गुजरांवाला, फिर कराची का जलसा, उसके बाद जो इन्होंने थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन दीगर सूबों में की है, अब भी मोस्ट ऑफ दी वर्कर्स जो है वो वहाँ से व्हीकल्स में, वैन्स में, ट्रेनों में भर भर के लाने की जो उन्होंने प्लानिंग की है वो वहाँ से लाएंगे। और मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं, ये उनका अपना स्ट्रेटजी है, अपने जलसे को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने किया होगा। लेकिन जब आप 3 दफ़ा अपने जलसे का डेट कोयटा के लिए चेंज कर सकते हैं, तो फिर सियासी कारकुनों के वसीतर मुफादात में, अवाम के वसीतर मुफादात में, बलूचिस्तान के उस अवाम के वसीतर मुफाद में, जो हशरों बाद हम नौमान की जो सूरत हाल बेहतर हुई है, जो ज़िंदगी में रमक है, जो ज़िंदगी रवा दवा हुई है, लोग एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हवाम की इस खुशहाली के लिए मैं इस्तिदा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मोदबाना दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ पीडीएम के क़यादत से, अगर वो वाकई ज़िम्मेदार हैं, उसमें ज़िम्मेदार अहदेदार हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, तो अपनी ज़िम्मेदारी का फ़र्ज़ अदा करते हुए वो ये जो जलसा है परसों जो मुनक्किद किया जाना है, उन्होंने इस नेक्टा के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पे उसे सस्पेंड करें, और बाद अज़ां जब ये ख़तरा टल जाएगा, या इसमें जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो प्लानिंग जो लोग कर रहे हैं, जो उसके मास्टर माइंड है, जब वो अरेस्ट होंगे, और पास में भी अरेस्ट होते रहें, थ्रेट अलर्ट के बाद भी अरेस्ट होते रहें, और फिर नेक्टा ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उसके बाद ये वजाहत किया है कि अब थ्रेट की सूरत हाल नहीं रही, जो उसके कम्प्लेक्सिटीज थे या जिस वो अकम्प्लेसिस थे, जो प्लानर्स थे, वो अरेस्ट हो गए। तो ऐसी जब नेक्टा की तरफ से क्लियरेंस आती है, उसके बाद भले वो जलसा मुनक्किद करें, बेहतर है, उनको मजीद टाइम मिलेगा, मजीद प्रिपरेशन कर सकेंगे, मजीद तैयारियां कर सकेंगे। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमें न इतराज़ था, न इतराज़ है, न रखना डाला है हमने, न रखना डालेंगे, न कंटेनर लगाया है, न शुरका को कंटेन करेंगे, बल्कि क़यादत को हम बुलेट प्रूफ आज भी फराम कर रहे हैं, तमाम फैसिलिटी फराम कर रहे हैं, जो वर्कर्स आ रहे हैं उनको हम सैनिटाइज़र, मास्क भी फराम करेंगे ताकि कोरोना से वो महफूज रह सकें, उनकी सेहत का भी हम ख्याल रख रहे हैं। तो हमारा जो इंटेंशन है वो बेस कर रहा है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे, और अगर पीडीएम की क़यादत वाकई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, अमन व अमान पे, हवामी बेहतरी पे, हवाम की फलाह बहबूद पे, अपने आप को प्रो पब्लिक, हवाम दोस्त क़यादत कहते हैं, तो फिर हवाम के वसी तर मुफादात में इस जलसे को फिल वक्त ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मुलतवी करें। और उसके बाद जब जलसे होंगे, बलूचिस्तान गवर्नमेंट आपको तमाम फैसिलिटीज़ फराम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि शुरका को भी जो मेहमान नवाजी के हमारे जो फ़राइज़ हैं, हम भरपूर तरीके से उसको अदा कर सकें। और दूसरा ये है कि पिछले महीने बलूचिस्तान में कोविड से 2715 हमारे लोग मुतासिर हुए, और ये जो है एक पीक की तरफ जा रहा था। ये फिगर जो मई और जून को की फिगर से मुशाबियत पैदा होना शुरू हुई। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बड़े एफर्ट्स किए, बड़े जतन किए, बड़े अपीलें की, दरख्वास्त किए, गुजारिशात किए अपने अवाम से। उसके बाद जाके हमारे जो कोविड के केसेस हैं बलूचिस्तान में कम होना शुरू हुए, डिक्लाइन शुरू हुई। अक्टूबर में, यानी कल शाम तक, अक्टूबर के महीने में 22 दिनों में सिर्फ 486 केसेस रिपोर्ट हुए, जो तनासुब के लिहाज से पिछले महीने के मुकाबले में 80% डिक्लाइन है, 1/5 केसेस रह गए। और जब दीगर सूबों में अब केसेस बढ़े हैं, दीगर सूबों से जो वर्कर्स आएंगे, पब्लिक आएगी, वो एसओपीज़ का ख्याल तो नहीं रखेंगे, वैन्स में आएंगे, कचाकच जो है उनको भर के लाया जाएगा, ट्रेनों में भर के लाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी जो शुरका हैं इस जलसे के, कोई 60 से 70% जाहिर है वो दीगर सूबों से आ रहा है, और वो अपने साथ पर कोरोना लाएंगे, और उस कोरोना से जो बलूचिस्तान में ऑलरेडी डिक्लाइन है, केसेस कम हुए हैं, वो इन्फेक्ट करेंगे बलूचिस्तान के अवाम को। वो कारकुन जो है वो तो अगले दिन चले जाएंगे। लीडरशिप तो N95 मास्क लगा रहे हैं, अपने सेहत और ज़िंदगी उनकी प्यारी है, उसका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वर्कर्स को कभी हमने नहीं देखा कि उन्होंने मास्क का पाबंद किया हो या कोई अपील की हो। गुजरांवाला जलसे में हमने कोई एसओपी नहीं देखा, कराची जलसे में हमने कोई एसओपी नहीं देखा, कोई मास्क, सैनिटाइजर हमने नहीं देखा। और जितने भी मोबिलाइजेशन के लिए कॉर्नर मीटिंग्स ये कर रहे हैं, किधरी भी
कोविड को ऑब्जर्व करने के एसओपीज दिखाई नहीं दे रहे, तो वाज़ेह है ये बात, प्रीमा फेशे है कि ये अपने साथ कोरोना ला रहे हैं और कोरोना हमें यहां पर गिफ्ट करके इन्फेक्ट करके ये वापस चले जाएंगे और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की फिर जिम्मेदारी होगी कि उनके लिए फिर हम मास्क फराहम करें, सैनिटाइज़र, क्वारंटाइन सेंटर्स को फ़ाल करें, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसको मोबिलाइज करें, फाइनेंस करें। पहले गरीब सूबा लॉकडाउन में 6 अरब रुपए हमने कोविड के लिए बजट हमने एक्सपेंडिचर्स किए हैं। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारे 8 लाख डेली वेजेस वर्कर्स बेरोजगार हुए, 60 अरब रुपए बलूचिस्तान की जीडीपी में हमारी मीशत को नुकसान हुआ, 5 लाख से जायद हमारे हाउस होल्ड जो पहले ही गरीब थे, लोअर मिडिल क्लास थे, खत गुर्बत से नीचे चले गए। उस वक्त इस तमाम पीडीएम की आदत किसी ने हमें न मदद की, न बलूचिस्तान गवर्नमेंट को किसी ने कॉल पे कोई अपने इजहार हमदर्दी किया, हमें हमारा हाल पे जोल दिया। गो कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें सपोर्ट किया और किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं आया। और कोरोना में हमारे लोगों को इन्फेक्ट करके ये वापस जाएंगे और फिर हमारा कोई नहीं पूछेगा। सफ़र बलूचिस्तान के अवाम कर रहे होंगे, खुदा न ख्वास्ता सिक्योरिटी अलर्ट के बाद, इस थ्रेट के बाद अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर बलूचिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे होंगे। मैं बारे दीगर ये गुजारिश कर रहा हूँ पीडीएम की आदत से कि अगर आपकी वजह से यहाँ पर कोरोना फैला, और मैं बलूचिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ कि कोरोना फैलने की वजह से जो इन्फेक्ट होगा, जो बीमार होगा और खुदा न ख्वास्ता जिसके अमवात वाक़ होंगे, तो फिर बलूचिस्तान के जो अवाम है, वो पेशेंट्स, उनके लवाकिन, वो इसका रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार पीडीएम क़यादत को और उनकी गैर जिम्मेदारी को ठहराएंगे। मैं एक दफ़ा फिर आखिर में ये गुजारिश करता चलूं कि हमारी जो इल्तिजाती हमने किया, लेकिन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की, पीडीएम क़यादत को सिक्योरिटी फराहम करने की, जिस होटल में वो रिहाइश पजीर होंगे उसको हम कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स फराहम कर रहे हैं, फुल प्रूफ इंतजाम कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट में हम इजाफा कर रहे हैं, एसओपीज पे अमल दरामद के लिए जलसागाह के मेन एंट्रेंस पे हम सैनिटाइजर और मास्क फराहम कर रहे हैं। उन एसओपीज पे अमल दरामद की जिम्मेदारी जो हमारे 28 पॉइंट्स एसओपीज पीडीएम क़यादत के साथ हमने फाइनलाइज किया है, उसके तहत ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि जलसागाह में मिनिमम जो सोशल डिस्टेंसिंग है 1 मीटर का, उसको वो मेंटेन कराएंगे, मास्क पहनने का लोगों को पाबंद करेंगे, सैनिटाइजर के इस्तेमाल का पाबंद करेंगे और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्पीच नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई ऐसी बात भी नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, कोई रेडिक्यूल नहीं कर सकते आप। तो ये वो एसओपीज है जिन पे उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, हामी भरा है, उन्होंने कमिटमेंट किया है हमारे साथ। इसके साथ जो ट्रैफिक प्लान है वो हमने फाइनल किया है। मुख्तलिफ एरियाज में जो वैन्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो आके पार्क होंगे, वहाँ पे हम हमारी जो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, जो हमारे पुलिस लेवीज एहलकार हैं, दीगर इंटेलिजेंस एहलकार हैं, सस्पिशियस जो व्हीकल्स हैं वो उसकी चेकिंग करेंगे, लोगों पे हम नज़र रखेंगे और जलसागाह के इर्द गिर्द हम डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, फुल प्रूफ इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब एक ऐसी सूरत हाल है, एक थ्रेट मौजूद है और एक जिम्मेदार इदारे ने, नेक्टा ने यह सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी किया है, उसको बतौर जिम्मेदार शहरी हम सबको सीरियस लेना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों से हम बाखबर हैं और बेहतर अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। पीडीएम की क़यादत से गुजारिश है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। बहुत शुक्रिया।